Good afternoon, Bande Matram students. As I told you 1 week before that I will start a revision batch of mathematics. So here I am going to start a revision batch of mathematics of standard 10th of whole lesson one by one. This is only a revision batch, not whole lesson. Revision batch means most IMP question. I will discuss here most IMP question and very hard topic which you not understood when you study this lesson. So I am going to start lesson number 14 statics. First lecture, lesson number 14 statics, most IMP lesson of this book of your class. This is most IMP lesson. Minimum 8 or 7 marks question asked in board examination. So first I will start this lesson. In this lesson you have to study 3 things. First, mean, median, and third is mode. You have to study in this lesson these 3 things: mean, median and mode. In your book, first mean, second mode and third given median. So today I will discuss mean, how you can find the mean of given information. Here finding the mean is 3 methods. First method is direct method, second method is assumed mean method, and third method is step division method. If this is mentioned in your paper that find the mean of given information by step division method or by assumed method or by direct method, then you have to apply that particular method. But there is no mention you can solve any one of the method. Mostly students apply these method, step division method, because this is very easy method, and for this method you can find the answer in very little time, very short time. अब सबसे important जो method है वो है step division method. So there are 3 formulas for 3 methods. For direct method you can apply the x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. This is the formula of finding mean by direct method, sigma fi xi upon sigma fi. The formula of finding mean, x bar is equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. This is the formula of mean by step assumed mean method. And step division method's formula is x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi multiply h. There is no shortcut, there is no rule to learn formulas. You have to learn these formulas very well. So we are going to start how we can find the mean by assumed mean method. This is question number 6 of your book 14.1. I have solved, I am going to solve only one question, and you have to solve 4 or 5 question similar to this question. Then तुम्हारे अंदर जितने भी डाउट होंगे बेटा सब सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसके जैसा क्वेश्चन 2-4 कर लोगे तो. So here this is given in your book. This is class 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 30, 30 to 350, and this is frequency fi 4, 5, 12 to 2. One thing is common here. किसी भी मेथड से आप मीन फाइंड करोगे, पहला काम करना होगा कि उसका क्लास मार्क निकालना होगा. XI, क्लास मार्क को XI कहते हैं. XI निकालने के लिए मेथड क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि ये जो क्लास है वो रेगुलर होना चाहिए. रेगुलर मीन्स 10 to 1, जैसे ऐसा भी दे सकता है 10 to 19, 20 to 29. ये रेगुलर नहीं है, ये इर्रेगुलर है. अगर ये इर्रेगुलर है तो पहले इसको रेगुलर में कन्वर्ट करते हैं, 0.5 कम कर देते हैं. ये 9.5 टू ये 90.5 हो जाएगा. फिर इसमें 0.5 कम करेंगे, 90.5 टू 29.5 हो जाएगा. देखिए अब रेगुलर हो गया.
रेगुलर नहीं दिया तो रेगुलर कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यही है, ये रेगुलर वाला। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, रेगुलर होता है। मीन्स 100 to 150, देखिए यहाँ पे 150 था, यहाँ भी 150 है, मीन्स दिस क्लास इज रेगुलर क्लास। ओके, सो फर्स्ट रूल इज यू हैव टू फाइंड XI क्लास मार्क। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हो, चाहे आप स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हो, पहला काम आपको करना है XI फाइंड करना है। XI फाइंड करने का मेथड है दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, यानी 100 प्लस 150 इक्वल टू 250, 250 डिवाइड बाई 2 125। सब में ऐसा मत करिए, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। टाइम कम लगे इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने का गैप है, इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है 100 to 150, 50 का गैप है, सब में 50 का गैप है, तो इसमें 50 50 50 50 प्लस करते चले जाओ, आपका XI कंप्लीट हो जाएगा। बार बार फार्मूले में पुट करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो शायद आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो पहली बार कर दीजिए दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दिस 50 50 प्लस करते चले जाओ, आपका XI कंप्लीट। अब नया कॉलम क्या होगा, फार्मूले से आपको पता चलेगा। देखिए फार्मूले में क्या है, FI DI, मीन्स DI आपको फाइंड करना है। तो DI का फार्मूला होता है DI इक्वल टू XI माइनस A। व्हाट इज ये, A इज एज्यूम्ड मीन। आप इसमें से क्लास मार्क में से XI में से किसी एक को A सपोज कर सकते हो, किसी को भी, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। लेकिन होता क्या है, जो मिड में होता है, मध्य में होता है, उसी को हम A सपोज करते हैं। ओके, हमने 225 को A एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला DI इक्वल टू XI माइनस A, XI 125 माइनस A 225, 550 220 21 माइनस 100। माइनस क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करना है। ठीक है, 125 माइनस 225, सो माइनस 100। 175 to 225 माइनस 50, 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50 प्लस में, क्योंकि 275 बड़ा है, 325 माइनस 225 मीन्स 100। आप एक चीज़ ध्यान देना, जिसको आप एज्यूम करोगे उसके ऊपर सब माइनस में आएंगे, उसके नीचे सब प्लस में आएंगे, ये ध्यान देना। अब न्यू कॉलम क्या बनना चाहिए, FI DI, मीन्स FI का मल्टीप्लाई DI के साथ करना है। तो यहाँ पे नया कॉलम आएगा FI DI, मीन्स FI का मल्टीप्लाई DI के साथ करना है। माइनस 100 DI है, FI है 4 मल्टीप्लाई माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस 400। फिर माइनस 50 मल्टीप्लाई 5 माइनस 250, 12 मल्टीप्लाई 0 12, 2 मल्टीप्लाई 50 100, 2 मल्टीप्लाई 100 200। ओके, अब आ जाइए फार्मूले पे। फार्मूले में क्या है, सिग्मा FI UI। सिग्मा का मतलब होता है सम। सम किसका, FI UI का। तो FI UI, FI DI, सर ये स्टेप डिवीजन है, सॉरी। सिग्मा FI DI मीन्स सम ऑफ FI DI। FI DI का सम, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इसका सम करेंगे। अब सम करने के लिए ये यहाँ आएगा सिग्मा FI DI। सिग्मा का यानी सम होता है, माइनस माइनस को एक साथ सम कर लेना, प्लस प्लस को एक साथ सम कर लेना, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो जाएगा -650 और ये प्लस प्लस 300। अभी सम नहीं हुआ, अभी तो हमने प्लस का सम किया है, माइनस का सम किया है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद साइन क्या बचेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा है माइनस का, इसलिए सिग्मा FI DI माइनस तो क्या हो जाएगा 350। दिस इज योर सिग्मा FI DI। जो कॉलम वाला काम था कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। x बार इक्वल टू A की वैल्यू 2 to 5 प्लस सिग्मा FI DI
माइनस 350 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 25. नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 225 माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. 25 1 जा 25, 4 जा 14. एक्स बार इज इक्वल टू, this is your final answer. This method is known as assumed mean method. पहले क्या करना है, xi फाइंड कर लेना है, फिर इसी में से किसी को a सपोज करना है. a के आगे di 0 होगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 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 इसमें से इसको माइनस करेंगे. दिस इज योर di. फिर नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, एफ आई डी आई मीन्स एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा. दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस. फिर आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स इसका सम चाहिए. तो माइनस माइनस को एक साथ सम किया और प्लस प्लस को एक साथ सम किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, माइनस बड़ा इसलिए माइनस बचा, सिग्मा एफ आई डी आई हो गया. ओके, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए 225. अब ध्यान देना, एक बार ए आपने जो सपोज कर लिया वही पूरे क्वेश्चन में रहेगा. ऐसा नहीं कि सर ने बोला है किसी को भी ए ले सकते हैं, तो अभी यहाँ लिया, यहाँ पे ए इसको ले लो, ऐसा नहीं होगा. एक बार जिसको ए ले लिया वही पूरे क्वेश्चन में ये होगा. तो वैल्यू पुट किया, आपका एक्स आई आ गया. ओके, समझ में आया. अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड से. हाउ वी कैन फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड. इन स्टेप डिवीजन मेथड फार्मूला विल बी चेंज. फार्मूला is x bar is equal to a plus sigma f I ui, not di. Here in assumed method formula is f I di, but in step division method formula is f I ui. So first, which is common, xi, you have to find xi in any method, direct method, assumed method and step division method. First of all you have to find xi, after then you have to find ui. ui is equal to xi minus a upon h, then fi ui. Okay, same method you can find xi. In xi row you have to suppose a mean according to you, according to your thought. Suppose 225 is a. Here you have to find ui. Formula is xi minus a upon h. xi means 125 minus a means 225 upon h. What is h? h means 100 to 150. 50 का गैप है ना, वही h कहलाता है. 50. 125 minus 225 means minus 100 upon 50. 52 जा माइनस 2 आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस 2 लिख देंगे. लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस करने में, ये कॉलम ही बनाने में आपको कम से कम 5 मिनट लग सकता है. ये तो छोटा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इतना बड़ा होता है तो ये कॉलम को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाओगे तो 5 मिनट लगेगा, जबकि ये काम कितने का है, 5 to 10 सेकंड. हाउ, जिसको आपने ये सपोज किया है उसको आप 0 ले लो, उसके जस्ट ऊपर -1 -2 नीचे +1 +2. अगर और बड़ा क्वेश्चन होता तो -1 -2 -3 -4 -5 नीचे +1 +2 +3 +4 +5 लाइक दिस. ईच एंड एवरी क्वेश्चन यही क्रम रहेगा ui का. ठीक है, अब एफ आई ui, ये है एफ आई, ये है ui. 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 12 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. You have to find sigma fi ui. Sigma means sum of fi ui. Here you can see that minus 2 digit, -8 -5 -13, 2 and 4, 2 plus 4 is equal to 6.
6 is plus, 13 is minus, so sigma fi ui is equal to 13 minus 6, 7, greater value is minus, so sign will be minus 7, sigma fi ui. Come to the formula, x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi multiply h. फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले में डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स बार इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 7 अपॉन सिग्मा एफ आई 25 मल्टीप्लाई एच। एच मीन्स डिफरेंस बिटवीन क्लास 100 to 150, difference is 50, so value of h will be 50 multiply by 50, 25 to ja 50, x bar is equal to 225 minus 7 to ja 14, 5 minus 4 1, 2 minus 1 1 2, this is your final answer. ओके, ये है स्टेप डिवीजन मेथड। इसके पहले जो हमने बताया वो है एज्यूम मीन मेथड। कल के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे एफ दे देगा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, हाउ यू कैन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्कस टुमारो, एंड टुमारो विल आल्सो डिस्कस हाउ यू कैन फाइंड द मोड एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्कस टुमारो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो कंटिन्यूस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे जैसे हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं 1 दिन 2 दिन तो आपके ग्रुप में रख दूंगा लिंक, लेकिन डेली मैं ग्रुप में लिंक नहीं रखूंगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद वीडियो आपको तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे चैनल। सब्सक्राइब करते ही दूसरा वीडियो जैसे ही मेरा आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।